ଉନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ରେକର୍ଡ 12,20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି କୃଷିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହିଁ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ବଜେଟ୍ରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବଦଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବଦଳରେ ନିୟମିତ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା କେମିତି ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବେ, ଦେଶର ବିକାଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୁବଶକ୍ତିର ବଜେଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଖର କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ 350 ଗୋଟି ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର ବା ରିଫର୍ମ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସଂସ୍କାର ସେ ଆଣିନଥିଲେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବଜେଟ୍ ଆତ୍ମ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଜରେ ମାନେ ଅଧିକ ଗତିରେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଦୌଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା ନଈକରିକି କିଛି କଥାକୁ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛୁ, କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏହାରି ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 575 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଇଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୂର୍ବତଟ ବିକାଶ କରିଡର। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ହବ୍ ଏ ଦୁଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତଟ ବିକାଶ କରିଡର, ସେଥିରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି: ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ।
ये पांचटीर पर्यटन स्थली सृष्टि करा जिबा सहित मध्य स्वतंत्रता भाव में फोकस करा जायछि एवं तार केन्द्रबिंदु मध्य होउछि ओडिशा एवं यार परिवहन पई आनुषंगिक व्यवस्था पई स्वतंत्रता देवा पई 4000 ई बस रो मध्य जोगे देवा पई एथिरे बजेट रे स्वतंत्रता दिया जायछि। आसंता 5 वर्ष मध्य 20टी नूतन जातीय जलपथ कार्यक्रम हब। यही पदक्षेपर एक अंश स्वरूप भाव में NW5 प्रथम पर्यायर यह कार्यकारी हेब। NW5 खनिज समृद्ध अंचल को प्राधान्य दि जाइछि। जेहेतु खनिज संपद अंचल ता भितर ओडिशा आसुछि आथिपाई स्वतंत्र भाव में ओडिशा को प्राथमिकता दि जाइछि। एथिरे विशेष करी तालचेर एवं अनुगुल अंचल को ओडिशार पारादीप एवं धामरा भली प्रमुख शिल्प एवं बंदर हब सहित संजोग करने जलपथरे तार ट्रांसपोर्टिंग करने जहाँ दक्ष एवं सुलभ माल परिवहन सहायक हब। आपंकर प्रदूषण को मध्य रोका जाई पारिबो। रेल एवं सड़क नेटवर्क उपरे मध्य जो आमर गोटे लॉजिस्टिक रो बहुत बड़ गोटे चाप रोची ताकू मध्य ये ह्रास करिवारे बड़ प्रमुख भूमिका नेब। यही पदक्षेप उद्देश्य होची स्थायी आभ्यंतरीण जल परिवहन को समृद्ध करने बहुल द्रव्य जोटा खनिज और शिल्प सामग्री परी सुजोग वृद्धि करने एवं पूर्व उपकूल एक लॉजिस्टिक एवं शिल्प हब भाव में ओडिशार भूमिका को मध्य मजबूत करने एक नूतन पदक्षेप अर्थनैतिक अंचल सिटी इकोनॉमिक रिजियंस शहरी परिचालित अर्थनैतिक अभिवृद्धि सुनिश्चित हब। से आपण देखिथे आम सरकार ओडिशा रे आसला परे आमे सहरांचल को गुरुत्व दौछु एवं सहरांचल को मान्यता देवा और से एक इकोनॉमिक रिजियन करने अर्थ होची सिटी इकोनॉमिक रिजियन करने अर्थ होची जे सेठी अर्थनैतिक अभिवृद्धि करने एक स्वतंत्रता भाव में ताकू तैयारी करा जिवो। अर्थनैतिक कॉरिडोर करा जिवो। से विभिन्न प्रतिष्ठान विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न प्रोजेक्ट विभिन्न शिल्प एवं लोकंकर आम्यूनिटीज को आधार करा जिवो जो कि अधिक लोक नियोजित हेबे काम करिवे लोकंकर रोजगार बढ़िबो एवं एथिरे आंचलिक सहरांचल क्लस्टर गुड़िक ऑटोमेटिक हेबे एवं सेथिपाई आमे मध्य उत्कर्ष ओडिशा रे मध्य जेमती फोकस करूचु जे सबु जिले में शिल्प हम शिल्पर गोटे हब करा आपंकर टेक्सटाइल पार्क करा आपंकर स्टील रो पार्क करा अनेक प्रोडक्ट रो भी मध्य पार्क करा या को आधार करी जहाँ केंद्र सरकार बजेट रे स्वतंत्र स्थान देइछंती सिटी इकोनॉमिक रिजियंस यह आसंता 5 वर्ष मध्य आपंकर 5000 कोटी टंकार आवंटन माने सीआर पिछा गोटे गोटे सिटी पिछा आपंकर सिटी इकोनॉमिक रिजियंस प्रति 5000 कोटी टंका आवंटन प्रस्ताव दि जाइछि। तार भित्तिभूमि सहित सर्विस पुंजी विनियोग किभली भाव में से सहर को उन्नति आनिबो अधिक लोक रोजगार पाइबे एवं रोजगार कले अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़िबो या को आधार जाइछि। एवं किछि दिन पूर्व आम ओडिशा सरकार मध्य घोषणा करथिले कटक भुवनेश्वर कटक पारादीप पुरी यही सहरांचल को लेकर गोटे कॉरिडोर पर मध्य आमे घोषणा करिछु। यह आम पाई वरदान सदृश है ओडिशा पाई एवं एथिरे स्वतंत्र भावे आमे गोटे बड़ अर्थनैतिक कॉरिडोर मध्य पाइबा पई जाउछंती। वन्यजंतु पर्यटन एवं परिवेश सुरक्षा को प्रोत्साहित करने ओडिशा कर्नाटक एवं केरल समेत राज्यर प्रमुख कईंच बसा बांधिबा स्थल निकट में कईंच ट्रेल टर्टिल ट्रेल्स विकसित करा पई केंद्र बजेट स्वतंत्र भाव में स्थान दि जाइछि। एथिरे प्रकृति भित्तिक पर्यटन योजना परिवेश अनुकूल पर्यटन भित्तिभूमि उपरे मध्य केंद्रित करा जाइछि जो थे कि आपंकर धामरारू आपंकर गोपालपुर पर्यंत जोठी आपंकर आमर कईंच मानकर अंडा देवा एवं सेमाने प्रति वर्ष रे आसंती गोपालपुर रे आपंकर भितरकनिका अंचल
ये अंचल को संपूर्ण भाव में एक परिवेश अनुकूल पर्यटन भित्तिभूमि करने केन्द्र फोकस स्वतंत्र भाव में दि जाए। विकसित भारतर आवश्यकता को लक्ष्य रखी महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजना MGNREGA रो गोटे बहुत बड़ा परिवर्तन आसी किछि दिन पूर्व एक कथा आपण जानी से नूतन योजना विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविक ग्रामीण VBG रामजी यही स्कीम अधीन प्रति ग्रामीण परिवार पिछा जो 125 दिन रोजगार वैधानिक गारंटी प्रदान करा जायछि और 100 दिन तुलन में 125 दिन कार्य देवार व्यवस्था करा जायछि। एथिरे 2026-27 आर्थिक वर्ष पर मोट 1,51,000 कोटी टंकार जो आवश्यकता पड़ुछि बजेट रे से केंद्र सरकार अंश 95,692 कोटी टंकार प्रावधान रखा जायछि एवं सही अनुसार यह 60-40 रेशियो रे कार्यक्रम योजना भितर ये निश्चित भाव स्वतंत्र भाव ये गोटे ठोस कार्यक्रम भितर हेबो जो कि लोकंकर रोजगार बढ़िया सहित भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हेबारे बहुत बड़ सहायता हेबो। आगुरी 30,000 टंका खर्च करा जाउथला केंद्र सरकार करथिले आम सरकार एबे आसिला परे एवं ये जो नुआ VBG रामजी ए स्कीम आनिला परे 30,000 कोटी को वृद्धि करी 95,692 कोटी टंका यार प्रावधान रखा जायछि एवं ताहा सहित मध्य राज्य सरकार रो बजेट रे मध्य तांको शेयर मध्य रखा जायछि। ओडिशा भली उपकूलवर्ती राज्य मानकर कृषक मानकर आय उत्पादकता एवं ग्रामीण नियुक्ति वृद्धि पाई उच्च मूल्यर कृषि अंश भाव में नड़िया काजू चंदन पाई योजना सहायक मध्य ये करा जायछि। आगामी दिन में यार उत्पादकता वृद्धि पाई ये समस्त नड़िया एवं काजू एवं चंदन पाई यार अधिक प्रोत्साहन देवार जो लक्ष्य रखा जायछि या द्वारा आमर प्रोडक्शन बढ़िबो। प्रोडक्शन बढ़िले सही अनुसार निश्चित भाव एथिरे जो माने नियोजित होइथिबे जो माने ये कार्य करुथिबे जो चाषी माने समाने निश्चित भाव एथिरे संपूर्ण भाव उपकृत हवा सहित आत्मनिर्भर हेबा क्षेत्र में ये गोटे बहुत बड़ गुरुत्व भूमिका निर्भर करिवो। मम्मा भरोसा माने कोन? पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स संपर्क एक भरोसार। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।